नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर के सांसद और केंद्रीय राज्य उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने 9 साल के दौरान की उपलब्धियां गिनाई। प्री मैट्रिक लड़के और लड़कियां छात्रावासों में प्रवेश के आवेदन आमंत्रित। आईपीएस बी दयानंद बेंगलुरु के नए पुलिस आयुक्त बने। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी प्रमुख शर्मिला ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से की मुलाकात। मंत्री रहीम खान ने नगर सभा प्रशासन के राज्य स्तरीय अधिकारियों संग बैठक की। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद पहली राजकीय यात्रा पर जाएंगी विदेश, 2 देशों की करेंगी विजिट। जम्मू कश्मीर से खबर है, अमृतसर से कटरा जा रही बस खाई में गिरी, 10 लोगों की मौत, 55 घायल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। जहां एक और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, सांसद, एमएलए पार्टी की उपलब्धियां गिना रहे, तो वहीं इस दौरान बीदर के सांसद और केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने भी 9 साल की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा। मोदी जी के शासन में मिली उपलब्धियों के बारे में आज बीदर भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए विस्तार से जानकारी उन्होंने साझा की और कैमरामैन संतोष ने की ये पूरी कवरेज। 9 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರೈಸಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮಂಠಾಳ್ಕರ್ ಜಿ ಅವರೇ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದಂಥ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಜಿ ಮಲ್ಕಾಪುರಿ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಬೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಾಬು ಅಲಿ ಅವರೇ, ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಯೋಜನೆಗಳ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸದೃಢತೆಯ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೌರವ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವರ್ಚಸ್ಸು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಯಾರಾದರೂ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ಲಾಭಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ನಂತರ ಸುಮಾರು 81 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ನಾವು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 9.6 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುವುದರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೇರವಾಗಿ
ಬಡವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3,55,000 ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸವಲತ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 220 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 31,13,000 ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ UPA 10 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 75 ಲಕ್ಷ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನಾವು ಕೇವಲ 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7 ಪಟ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ತದೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1,83,000 ಜನರಿಗೆ 58% ಜನರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 11,472. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಓದ್ದೆ. ಬರೀ 11,470 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 11,72,00,000 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3,45,556 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿದೆ. PM ಸ್ವನಿಧಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ 115 ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 11.5 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ 1,30,185 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 5,04,265 ರೈತರಿಗೆ 501 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 2,11,500 ರೈತರಿಗೆ 51 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. PM ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 11 ಕೋಟಿ ರೈತರಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4,02,520 ರೈತರಿಗೆ 556 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. MSP ಇವತ್ತು ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ಸೋಯಾ, ಭತ್ತ, ಗೋಧಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 80%, 2014ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 80% MSPಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 64,03,300 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 55,20,00,000 ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೇವಲ 91,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. 2014ರಿಂದ 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 65,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕೋಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೇವಲ 72 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಇವಾಗ 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾವು 74
ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 148 ತನಕ ಇವತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. अब बात करेंगे छात्र छात्राओं के छात्रावासों में प्रवेश की। तो पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण, अनुसूचित वर्ग कल्याण विभाग द्वारा साल 2023-24 के लिए प्री मैट्रिक बालक एवं बालिका छात्रावासों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन राज्य छात्रावास प्राधिकरण के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन विभागों के छात्रावासों में 5वीं से 10वीं कक्षा तक नए प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्राएं राज्य शिक्षा निदेशालय के पते http://sstchi.nchi.NHACHI.gov.in पर अपने छात्र पहचान पत्र के साथ जाकर आवेदन करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी के पद पर कार्यरत अनुभवी पुलिस अधिकारी बी दयानंद को बेंगलुरु शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। निर्णय की घोषणा मंगलवार 30 मई को राज्य सरकार द्वारा जारी एक स्थानांतरण आदेश के माध्यम से की गई है। तो वहीं 1994 बैच के अधिकारी बी दयानंदा कला स्नातक हैं और हावेरी जिले के रानी बेन्नूर के रहने वाले हैं। उन्होंने पहले बेंगलुरु शहर में अपराध और यातायात के लिए जिम्मेदार संयुक्त पुलिस आयुक्त के रूप में कार्य किया। सरकार ने बेंगलुरु शहर में विशेष आयुक्त यातायात के पद पर रहे एमएस सलीम को पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद पर पदोन्नत किया है, जो बेंगलुरु में आपराधिक जांच विभाग, सीआईडी विशेष इकाइयों और आर्थिक अपराधों की देखरेख करते हैं। बेंगलुरु के वर्तमान पुलिस आयुक्त सीएच प्रताप रेड्डी का तबादला कर उन्हें आंतरिक सुरक्षा प्रभाग का डीजीपी नियुक्त किया गया है। सीआईडी के एडीजीपी केवी शरद चंद्रा को बी दयानंद की जगह इंटेलिजेंस का एडीजीपी नियुक्त किया गया है। चलिए अब बात करेंगे रहीम खान की। तो कर्नाटक राज्य नगर सभा प्रशासन और हज विभाग संभालने के बाद मंत्री रहीम खान ने पहले बेंगलुरु में हज भवन को भेंट देकर वहां अधिकारियों और हज समिति के चेयरमैन रोफुद्दीन कचेरीवाला और अधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद आज खान ने राज्य विधानसौधा में राज्य नगर सभा प्रशासन के राज्य स्तरीय अधिकारियों संग बैठक करके विभाग के मामलात का जायजा लिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जहां डेप्यूटी सीएम बनने के बाद डीके शिव कुमार के साथ मुलाकातों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। तमाम दिग्गज उनसे मिलने को आतुर नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी की बहन और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने सोमवार 29 मई को कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से बेंगलुरु में उनके आवास पर मुलाकात की। डीके शिव कुमार के कार्यालय ने कहा कि ये सिर्फ एक सौहार्दपूर्ण बैठक थी। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और आगे कोई विवरण नहीं दिया गया। शिव कुमार आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएसआर राजशेखर रेड्डी के दिनों से शर्मिला के करीबी पारिवारिक मित्र हैं। सूत्रों ने कहा कि शर्मिला तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने की इच्छुक है और उन्होंने इस संबंध में शिव कुमार से बात की। कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले भारत विरोधी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के वोटों को एकजुट करने की भी उम्मीद कर रही है। जहां सबसे पहले हमने देखा कि कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान देखी गई। हालांकि उसके बाद ये खींचतान दूर हुई, मुख्यमंत्री का नाम सभी के सामने आया और उसके बाद इंतजार किया जा रहा था कि कौन होगा कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर। तो उनकी सूची भी सबके सामने आ गई और जैसे मिनिस्टर्स के नाम सामने आए तो इंतजार ये था कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने तमाम मंत्रियों को विभागों का जिम्मा सौंपा और अब आपको जानकारी विस्तार से देते हैं कि आखिर किसको कौन सा विभाग दिया गया। तो वहीं जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जिन्होंने शनिवार को 34 सदस्यों की अपनी अधिकतम क्षमता तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, रविवार देर रात अपने कैबिनेट सहयोगियों को वित्त, कैबिनेट मामलों, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, खुफिया सूचना विभाग को रखते हुए मंत्री स्तरीय विभागों का आवंटन किया। आईटी और बीटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और खुद के लिए सभी अनावंटित पोर्टफोलियो। नई सरकार को कार्रवाई में लाने के लिए एक अधिसूचना के माध्यम से विभागों का आवंटन पूरा होने के साथ सिद्धरामैया ने सोमवार सुबह विधानसौधा में मुख्य सचिव सहित शीर्ष नौकरशाहों से मुलाकात की। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पायरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ अब सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, ओपन लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉल रूम्स, स्विमिंग पूल,
कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, स्वीट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पायरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टेक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं देश के अन्य राज्यों के समाचार। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले कुछ दिनों में 2 देशों की यात्रा पर होंगी। इस राजकीय यात्रा को उनकी पहली यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में इसके मायने काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की शुरुआत में 2 देशों की यात्रा पर जा रही है। वे अगले महीने सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को ये जानकारी दी। ये जुलाई 2022 में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद मुर्मू की पहली आधिकारिक विदेश यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर 4 से 6 जून तक सूरीनाम की यात्रा पर रहेंगी। मंत्रालय के मुताबिक मुर्मू सूरीनाम में संतोखी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी और इस देश में भारतीयों के आगमन के 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। गौरतलब है कि 5 जून 1873 को 452 भारतीय मजदूरों को लेकर पहला जहाज सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो पहुंचा था। इस मजदूरों में से ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सूरीनाम में राष्ट्रपति ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाली जगहों का दौरा करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से रूबरू होंगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू की सूरीनाम की यात्रा पिछले साल राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से उनकी पहली राजकीय यात्रा होगी। संतोखी इस साल जनवरी में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मानित अतिथि के रूप में भारत आए थे और उन्होंने मुर्मू से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यात्रा के दूसरे चरण में मुर्मू सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के निमंत्रण पर 7 जून से सर्बिया गणराज्य की यात्रा करेंगी। मंत्रालय के अनुसार सर्बिया में मुर्मू राष्ट्रपति वुसिक के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एन बर्नाबिक तथा नेशनल असेंबली अध्यक्ष व्लादिमीर ओर्लिक से मुलाकात भी करेंगे। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी आपको दे दें कि अमृतसर से कटरा जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और 55 लोग घायल हो गए। हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है जिन्हें। मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा जम्मू से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जज्जर कोटली क्षेत्र में हुआ। बस में वैष्णो देवी के यात्री भी मौजूद थे। हादसा सुबह के वक्त हुआ, जिसके बाद आसपास के लोग और पुलिसकर्मियों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने बताया कि जम्मू में हुई बस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 55 लोग घायल हो गए। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद थी। बस में निर्धारित सीमा से अधिक यात्री सवार थे। इस मामले की जांच की जाएगी। पुल है, ब्रिज है, वहां से इसमें 10 लोगों की डेथ हुई है और 55 के लोग इसमें इंजर्ड हैं, करीब 55। सबको इवैक्यूएट किया गया है। लोकल्स ने भी मदद की है। सीएपीएफ की टीम्स थी वहां पे और पुलिस की टीम्स थी और यहाँ पे अब जायजा लेने के लिए जीएमसी में हम आए हैं और सभी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ये इस टाइम पे अभी मैं बता नहीं पाऊंगा रीजन इसका क्या रहा है, तो मगर इन्वेस्टिगेट करेंगे इस चीज को और जल्दी ही जैसे ही डिटेल्स आएंगी आपके साथ साझा करेंगे। सर रेस्क्यू कमिट हो गया है। सर रेस्क्यू कमिट हो चुका है। अब तमाम लोगों को निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मगर फिर भी जस्ट बिकॉज की बस जो नीचे गिरी है उसकी पोजीशन ऐसी है कि एक बार फिर से उसको चेक करना पड़ेगा। मैनुअली हमने पूरा तरीके। राजस्थान में पिछले कुछ महीनों से हम देखें तो राजनीतिक उथल पुथल लगातार जारी थी, जहां एक और कांग्रेस पार्टी 2 खेमों में बटी हुई नजर आ रही थी। एक और गहलोत खेमा तो दूसरी ओर सचिन पायलट खेमा। विधायक भी कुछ इसी तरीके से बटे हुए नजर आ रहे थे, पर अब जिस तरीके से बयान सामने आया तो मानो ऐसा लग रहा है कि अब इस मसले में थोड़ी ठंडक पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से राजस्थान के सियासी झगड़े का अंत होता हुआ दिख रहा है। आज सोमवार की शाम से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठकें चल रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले, इसके बाद सचिन पायलट से मुलाकात हुई। इन बैठकों में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सभी मसले सुलझा लिए गए हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया है। हालांकि इस दौरान गहलोत और पायलट मीडिया से कुछ नहीं बोले। वहीं सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है कि इस बैठक में तय हुआ है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन प्रदेश संगठन में बदलाव किया जाएगा और संभावना है कि सचिन पायलट को संगठन में जिम्मेदारी दी जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार हम देखते हैं कि केंद्र सरकार पर हमलावर रहती है, तो वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। यही तंज कसते हुए उन्होंने एक फोटो भी ट्वीट किया है। ममता ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर किया है जो राजनीति के लिहाज से खास है। इस तस्वीर के एक हिस्से में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपनी नई कैबिनेट के साथ है, जिस पर लिखा है आजादी के बाद, और दूसरी फोटो संसद के नए भवन के उद्घाटन की है, जिसमें पीएम मोदी अधिनम पुजारियों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। फोटो के इस हिस्से पर लिखा है और अब। इस तस्वीर का मकसद ये है कि जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट के सदस्यों के लिए और कैबिनेट के सदस्यों के लिए प्रधानमंत्री क्या थे, लेकिन अब क्या हो रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन किया था और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर और जितेंद्र सिंह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे और विपक्षी पार्टियों में से ज्यादातर उपस्थित नहीं हुए। सबकी मांग थी कि उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करे। ममता बनर्जी ने उद्घाटन समारोह को लेकर पीएम मोदी पर पहले भी तंज कसा था और कहा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन और लोकसभा कक्ष में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल स्थापित करने से पता चलता है कि इस तरह के एक महत्वपूर्ण अवसर के दौरान प्रधानमंत्री की प्रवृत्ति पूरी तरह से सुर्खियों में रहने की, इतिहास में बने रहने की है। ममता ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सिक्के बदले जा रहे हैं, इतिहास बदला जा रहा है, लेकिन देख लेना अगले 6 महीने में दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठी सरकार भी बदलेगी। चलिए अब देखते हैं समाचार विदेश के। तो चीन कोरोना से बुरी तरह से जूझ रहा है। आज भी वो इससे उबर नहीं पाया है, लेकिन एक बार फिर से चीन में कोरोना वायरस फैलने का अंदेशा है। कोरोना के रूप में एक और बड़ा खतरा इस देश पर मंडरा रहा है। चीन ने कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को भांपते हुए इससे निपटने के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है। ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि जून महीने में देश में कोरोना के 6.5 करोड़ केस सामने आ सकते हैं। वहीं चीनी महामारी विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा है कि देश को अस्पतालों में एंटीवायरल दवाओं की सप्लाई के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बीच खबरों के मुताबिक चीन का आर्थिक विकास प्रभावित न हो, इसके लिए शी जिनपिंग सरकार लॉकडाउन से परहेज करेगी। चीन के विशेषज्ञों ने भारत को नए संक्रमण की लहर को लेकर चेतावनी दी है। चीन इसी साल की शुरुआत तक कोरोना के कहर से बुरी तरह प्रभावित हो गया था। इसके बाद अभी 6 महीने पहले ही चीनी अधिकारियों ने बहुत क्रूर जीरो कोविड नीति को खत्म किया था। जीरो कोविड नीति की वजह से देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों की आवाजाही पर बैन था और कई अन्य शहरों में कठोर प्रतिबंध लगे हुए थे। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का
एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पायरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ अब सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, ओपन लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉल रूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, स्वीट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पायरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इजराइल को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक और तो वह गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन के आतंकियों के साथ लड़ाई कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ उसकी तनातनी जग जाहिर है। इसी बीच सीरिया में भी सैन्य ठिकानों पर इजराइल ने हमले किए हैं, क्योंकि इजराइल काफी समय से सीरिया में ईरान समर्थित शिया लड़ाकों को टारगेट कर रहा है, उसके खिलाफ हमले किए हैं। जानकारी के अनुसार इजराइल के युद्धक विमानों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में सैन्य ठिकानों पर रात भर अटैक किया। इस कारण काफी क्षति हुई है। सीरियाई सेना ने ये बात अपने बयान में कही।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बयान के हवाले से कहा कि हमला इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स के ऊपर से किया गया। इसमें कहा गया है कि कुछ मिसाइलों को रोक दिया गया है। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। तो वही द केरला स्टोरी की स्टार एक्ट्रेस अदा शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं रिलेशनशिप में हूं, लेकिन वो बॉयफ्रेंड के रवैये को लेकर द केरला स्टोरी फैम अदा शर्मा ने ये चौंकाने वाली बात कही। अब देखते हैं समाचार खेल जगत से। तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है और कहा कि वो गंगा में अपने सारे मेडल बहा देंगे। आमरण अनशन भी इसके बाद वो करेंगे। अब आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। नौकरियां बढ़ने से बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर के सांसद और केंद्रीय राज्य उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने 9 साल के दौरान की उपलब्धियां गिनाई। प्री मैट्रिक लड़के और लड़कियां छात्रावासों में प्रवेश के आवेदन आमंत्रित। आईपीएस बी दयानंद बेंगलुरु के नए पुलिस आयुक्त बने। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी प्रमुख शर्मिला ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से की मुलाकात। मंत्री रहीम खान ने नगर सभा प्रशासन के राज्य स्तरीय अधिकारियों संग बैठक की। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद पहली राजकीय यात्रा पर जाएंगी विदेश। 2 देशों की करेंगी विजिट। जम्मू कश्मीर से खबर है, अमृतसर से कटरा जा रही बस खाई में गिरी, 10 लोगों की मौत, 55 घायल। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।